وزیر اعظم شہباز شریف اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم کی ملاقات، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وفاقی وزراء کی بھی شرکت۔ پاکستان اور اردن کی قیادت کا غزہ امن معاہدے کے حوالے سے روابط مزید بڑھانے پر اتفاق۔ شاہ عبداللہ دوم کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کلیدی کردار کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے شاہ عبداللہ دوم کو افغانستان اور بھارت سے متعلق امور پر اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے کہا، شاہ عبداللہ دوم کا دورہ پاکستان پائیدار دوستی کا ثبوت ہے۔ پاکستان اور اردن کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ شاہ عبداللہ کے پاکستان پہنچنے پر صدر اور وزیر اعظم نے ایئرپورٹ پر خوش آمدید کہا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں مسلح افواج کے چاق چوبند دستے نے شاہ عبداللہ کو سلامی دی۔ شاہ عبداللہ نے وزیر اعظم ہاؤس کے احاطے میں پودا بھی لگایا۔ بانی پی ٹی آئی اقتدار کے لیے سیاست کے بجائے توہم پرستی کا شکار تھے۔ اقتدار اور طاقت کے لیے اپنی پیرنی بشرا بی بی سے شادی کی، ایک جادوگرنی جو قوم کے ہیرو کو محصور کر کے اپنی مرضی کے مطابق چلاتی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کی زندگی میں بشرا بی بی کا کردار لیڈی میکبتھ جیسا تھا۔ بشرا بی بی نے روحانی علم سے بتایا دونوں کی شادی ہو جائے تو وہ وزیر اعظم بن جائیں گے۔ دی اکانومسٹ گروپ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کی تہلکہ خیز رپورٹ جاری۔ پنجاب کی پیرنی نے بانی کی ذاتی زندگی، سیاست پر عملیات کا رنگ چڑھایا۔ بانی پی ٹی آئی نے اقتدار کے لیے دینداری کا لبادہ اوڑے رکھا۔ دنیاوی کامیابی کے لیے بشرا بی بی کی ہر بات پر عمل کیا۔ ریاستی امور میں بشرا بی بی حرف آخر سمجھی جاتی تھی۔ بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر وزیر اعظم کا طیارہ اڑان نہ بھرتا تھا۔ بشرا بی بی کے حکم پر وفادار اور قریبی ساتھی دیرینہ گھریلو ملازمین کو فارغ کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل باجوہ سے ون آن ون ملاقات بھی بشرا بی بی موجود تھی۔ ملاقات میں زیادہ وقت بشرا بی بی ہی بولتی رہیں۔ بشرا بی بی کی کرپشن سامنے لانے پر بانی نے اس وقت کے ڈی جی ISI عاصم منیر کو عہدے سے ہی ہٹا دیا۔ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کی اجازت کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ ملک کو جادو اور نمبر سے چلایا جاتا تھا۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کی شریک مصنفہ بشرا تسکین کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا اپنی رپورٹ کا صرف 10% ہی شائع کر سکے۔ پاکستانی میڈیا پر جو رپورٹ ہو رہا تھا اس سے زیادہ تفصیل دی۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف سپانسرڈ آرٹیکل شرانگیز اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ ہم قانونی چارہ جوئی کا حق رکھتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں آرٹیکل کا مقصد بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی کردار کشی کرنا ہے۔ بشرا بی بی صرف بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ اس سے قبل بھی گھٹیا الزامات لگائے گئے جس سے وہ بری ہو چکی ہیں۔ ایسے ہتھ کنڈوں سے بشرا بی بی کو نہیں توڑا جا سکے گا۔ بشرا بی بی نے روحانیت کا لبادہ اوڑھا ہوا تھا۔ ملک کے اہم فیصلے اس طرح ہونا انتہائی افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا رد عمل۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا بشرا بی بی بانی کو کنٹرول کرتی تھیں، ان کی وجہ سے بنی گالا منی گالا بنا۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کہتے ہیں آئینی فیصلوں سے لے کر کابینہ کی تشکیل تک ہر چیز میں پیرنی کا ہاتھ تھا۔ وزیر مملکت توان چودھری نے کہا بڑے بڑے سیاسی فیصلے بشرا بی بی تصاویر دیکھ کر کرتی تھیں۔ خواب دیکھنے پر مجھے وزیر اعظم کی تقریب حلف برداری میں آنے سے روک دیا گیا تھا۔ عظمہ بخاری نے کہا جادو ٹونے سے جعلی پیر خانے چلتے ہیں، ملک اور اس کی معیشت نہیں۔ پنکی، گوگی، کوچ اور بزدار نے مل کر بانی پی ٹی آئی کو 4 سال ڈگڈگی پر نچایا۔ شرجیل انعام میمن نے کہا پی ٹی آئی دور میں کالے جادو کے ذریعے ریاست کو چلایا جا رہا تھا۔ بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کو جنازے پر نہیں جانے دیتی تھی۔ ایٹمی ملک جادو ٹونے سے چلے گا تو اس کے نتائج اچھے نہیں آئیں گے۔ شجاع آباد میں بس نے 2 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ 3 سگے بھائیوں سمیت 4 افراد جاں بحق۔ حادثے میں جاں بحق 20 سال کے یاسر کی پیر کو شادی تھی۔ یاسر مہندی کی تیاری کے لیے کزن اور دوستوں کے ساتھ شاپنگ کے بعد گھر جا رہا تھا۔ کراچی میں شارع فیصل پر نوجوان ون ویلنگ کرتے ہوئے جان سے گیا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے نوجوان ون ویلنگ کے دوران ریس لگا رہا تھا۔
हैदराबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका, जाम बहक अफराद की तादाद 6 हो गई, 11 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। पटाखों की फैक्ट्री लतीफाबाद में बचा बंद के करीब वाक़ है। मेयर हैदराबाद ने बताया, रिहायशी इलाके से दूर एक घर में पटाखों की फैक्ट्री बनाई गई। वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध ने मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान लकी मरवत और बन्नू के सरहदी इलाके में झड़प, कबाइल की फायरिंग से 7 दहशतगर्द हलाक। DIG बन्नू सज्जाद खान कहते हैं, ऑपरेशन में अवाम ने पुलिस के शाना बशाना भरपूर हिस्सा लिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अवाम और पुलिस का ये इत्तेहाद अहम किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा। खवारजियों का हमला नाकाम बनाने कैडेट्स और टीचर्स को रेस्क्यू करने वाले अफसरान और जवानों से मुलाकात। तलबा और टीचर्स से भी मिले। वजीर दाखिला ने पाक फौज के अफसरों और जवानों को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। कहा, ये असल में दहशत गर्द भी नहीं, ये दरिंदे हैं जिनका इंसानियत से ताल्लुक नहीं, इनका कोई मजहब नहीं, इनको इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। दुश्मन स्थानीय APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था। हमारे दलेर जवानों ने खवारिज को जहन्नुम वासिल करके साजिश नाकाम बनाई। वजीर दाखिला ने कबायली अमायदीन से गुफ्तगू में कहा, किसी को हम तबाह करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद कचहरी हमले में भी अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। इस्लामाबाद कचहरी खुदकुश हमला केस की तहकीकात जारी। जराए का कहना है, खुदकुश जैकेट पेशावर में तैयार की गई। मुलजिम खुदकुश जैकेट पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपा कर लाया। 3 दिन तक एक दरख्त के नीचे छुपा कर रखा गया। कुछ दिन तक खुदकुश जैकेट एक दर्जी के पास भी रखी गई। दर्जी के इल्म में था कि यह खुदकुश जैकेट है, उसे भी हिरासत में ले लिया गया। मरकजी सहूलतकार ने खवारिज से राबतों का एतराफ़ कर लिया। मरकजी सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात सामने आने की तवक्को है। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो से आज़ाद कश्मीर के नामजद वजीर आजम फैसल मुमताज राठौड़ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम के मसाइल खुश असलूबी से हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवाम के मसाइल जिम्मेदारी और खुश असलूबी से हल करें। अवामी सतह पर राब्ते मजीद बढ़ाएं ताकि हकीकी मसाइल से आगही हासिल रहे। मुलाकात में फरियाल तालपुर की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। जस्टिस KK आगा ने वफाकी आईनी अदालत के जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस KK आगा से हलफ लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने इस्तीफा दे दिया। जराए का कहना है, इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया गया। शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट पर 5वें नंबर पर थे। इस्तीफे देने वाले अपने सियासी एजेंडे के दरवाजे बंद होते देखकर मायूसी में कदम उठा रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान के लिए संग मील है, इसे अदलिया पर हमला कहना दुरुस्त नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, एजेंडे पर चलने वाले जज अदलिया को बदनाम करते हैं। ऐसे जज इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरूह करते हैं। शोहरत के लिए नज़ीर से इनहराफ करने वाले जजेस को मुस्ताफी होकर सियासत में आ जाना चाहिए। बरसों तक स्टे ऑर्डर जारी रखना और आखिर में केस खारिज करना निज़ाम इंसाफ से मजाक है। जज को ज्यादा सुनना, कम बोलना और बुकला की मामलत पर फैसले करने चाहिए। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का श्रीलंकन और जिम्बाब्वेन क्रिकेट टीम के एजाज में शाइया। इस्लामाबाद में होने वाली तकरीब में मेहमान टीमों के साथ कौमी वनडे और T20 स्क्वाड के खिलाड़ी भी शरीक हुए। मेहमान खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी खानों की तारीफ की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे आज खेला जाएगा। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बरतरी। पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के दरमियान ट्राई सीरीज की तैयारियां शुरू। जिम्बाब्वेन टीम ने इस्लामाबाद में पहला प्रैक्टिस सेशन किया। नेट्स में बैटिंग बॉलिंग की भरपूर मशकी की। पाकिस्तान के T20 खिलाड़ियों ने भी कमर कस ली। साहबजादा फरहान, उस्मान खान, अब्दुल समद, सलमान मिर्जा और उस्मान तारिक ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। कोचेस की निगरानी में फील्डिंग ड्रिल्स और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। सैफ अली की सीरीज मंगल को पाक जिम्बाब्वे मैच से शुरू होगी।
तमाम मैच ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने 3 फौजी तरमीमी बिल्स की मंजूरी दे दी। सदर ने पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के तरमीमी बिल्स की मंजूरी दी, जिसके बाद तीनों बिल आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन गए। मौसमियाती तब्दीली से निमटना हमारी बका का मसला है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली जैसे बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात कम करने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी है। आलमी इदारों से मालियाती इमदाद के साथ साथ तकनीकी मुआवनत भी चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कोप 30 कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान तेज़ी से उभरती हुई मईशतों में शामिल है। माहौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए ग्रीन सुकूक बॉन्ड जारी किया गया। ग्रीन क्लाइमेट फंड से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड से इस्तिफादा के लिए रुकावटें दूर करना होंगी। कराची में ट्रैकर न होने पर डंपर का 1 लाख रुपए जुर्माना। रजाकाबाद में तेज रफ्तार डंपर के बाइस हादसा पेश आया था। डंपर में ट्रैकर ना फिटनेस सर्टिफिकेट, 3 माह के लिए ड्राइवर के लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैकर तक रसाई न देने वाले डंपर्स और टैंकर्स पर पाबंदी लगा दी। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह कहते हैं फैसला रजाकाबाद हादसे के बाद किया। ट्रैकर का कंट्रोल दिए बगैर कराची की सड़क पर अब कोई डंपर या वाटर टैंकर नहीं चलेगा। चेकिंग के दौरान बगैर ट्रैकर वाली गाड़ियों को जब्त करेंगे। सिंध में सरकारी महकमों की गाड़ियों के चालान, सीट बेल्ट न बांधने, टिंटेड ग्लास और सिग्नल तोड़ने पर चालान जारी। सरकारी गाड़ियों के चालान अफसर खुद अदा करेंगे। सिंध हुकूमत का फैसला। चालान पीपल्स पार्टी का गुंडा और भत्ता टैक्स है। वफाक को अब हर सूरत मुदाखलत करना होगी। MKM रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं शहर की तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। 7वें कौमी मालियाती कमीशन में वसाइल और इख्तियारात हासिल करके घमंड करने वाली पीपल्स पार्टी भूल गई ये इख्तियारात और ताकत MQM ने उसे दिलवाई। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल तश्कील। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली का कमीशन से मुतालिक नोटिफिकेशन पर इज़हार तशवीश। कहा कमीशन में पाकिस्तान के 5 टॉप प्रेस क्लब्स की बुनियादी नुमाइंदगी को नज़रअंदाज किया गया। ये कमीशन बेअसर और बेख्तियार साबित होगा। संगीन गलती फौरी तौर पर दुरुस्त की जानी चाहिए। सऊदी वली अहद के साथ मुलाकात एजाज है। मंगल को होने वाली मुलाकात में सऊदी वली अहद से अब्राहम अकॉर्ड पर बात होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं उम्मीद है सऊदी अरब जल्द मुआहदे में शामिल होगा। सऊदी अरब F-35 समेत बहुत से लड़ाका तैयारे खरीदना चाहता है। इस डील पर गौर कर रहे हैं। दूसरे ममालिक की तरह हम भी एटमी तजर्बात करेंगे। चाहता हूं दुनिया जौहरी हथियारों से पाक हो। सदर ट्रंप ने मजीद कहा BBC के खिलाफ अगले माह कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस मामले पर बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर से भी बात करूंगा। भारतीय फजाइया उड़ान भूल गई। चेन्नई में एक ही दिन में 3 तैयारे तबाह। भारतीय फजाइया का PC-7 पैलेट्स ट्रेनर तैयारा गिरकर तबाह हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स का तरबियती तैयारा मामूल के मिशन पर था। पायलट महफूज रहा। भारतीय एयरफोर्स के 2 मजीद तैयारे भी मश्क के दौरान हादसे का शिकार हुए। गजा में मौसम सरमा की पहली बारिश ने फलस्तीनियों की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी। पनाह गुज़ीरों के खेमे में पानी दाखिल हो गया। रजाइयाँ, कंबल समेत बचा कुचा सामान भी पानी की नजर हो गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मुश्किलात बयान करते हुए एक फलस्तीनी खातून जज्बात पर काबू ना रख सकी और ज़ारो कतार रोने लगी। पूछा दुनिया कहाँ है, गजा वाले मुश्किल में हैं। बरतानिया की काउंटी वेल्स में क्लॉडिया तूफान से तबाही। मूनमाउथ में 1 माह की बारिश एक दिन में बरस पड़ी। शहर को सैलाब ने घेर लिया। हुकाम ने हंगामी सूरत हाल का ऐलान कर दिया। कई इलाकों में स्कूल और दफातर बंद। ट्रांसपोर्ट और रेल नेटवर्क भी शदीद मुतासिर हुए। सैलाब ज़दगान को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कराची में 8वां सिंध लिटरेचर फेस्टिवल सज गया। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में अदब, तारीख, ज़बान, सकाफत